जब एक बार आप सोचना शुरू करते हो, दैट्स द ओनली इजिएस्ट डे, because once you start writing for a brand like Fukre, your bad time starts in terms. So just Fukre 3 लिखनी है, वहाँ तक का easy रहता है टाइम, और जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद, उससे बीच में कोई easy day नहीं है. You know, I mean, it's not about that. I think it's more what you relate to, and I think it started from when we were 26, 27 when we made that film. And if you notice any of those three characters, they'll be timeless. Whether it's Akash, it's Sid, it's Samir, you can relate to all three of them. I think there's a little bit in each one of us, and I mean both genders. You will find a little bit of an Akash or a Samir or Sid in someone, and that became the genesis of what we wanted to start off, right? So I think as long as you identify with the character, you relate to it, and maybe friendship, I mean, we really strongly believe in that. And I think it comes very easy to us. जिनको कभी किसी को action आ जाता है या comedy आ जाता है, I think for us these bonding, I don't want to say male bonding because we also have a female bonding story which is going to come out very soon. So yeah, so I think we relate to it. Thank you. This is our mutual admiration Absolutely. society. Thank you everybody for coming here for Fukre 3 trailer, yeah, and for making it impossible for us to hear the dialogues because of your screams and your whistles. Thank you so much. Please, let's call the next one. No, I have a question for you before we Oh, call okay. the next one. इतनी जल्दी से मतलब we're not Quiz going to get rid of. contest. कि अगर हम एक और part के साथ आ रहे हैं, so we justify what we have done so far, and we ourselves would be disappointed अगर ऐसा नहीं होगा तो. Apart from that, this man doesn't give us any choice. The James Cameron of Excel. He doesn't give us any choice, so we have to really be. तुम मुझे दिख नहीं रहे, but I love you too. Thank you. You know, the excitement is always really, really high along with the nervousness. क्योंकि हम लोग सिर्फ co-stars नहीं हैं. We all have become family, not over the years, Yeah. just within the first few days of the first part. It wasn't even कि second part में जाके family बने या third में आके बने. We all know what we like to eat, what we like to do in our free times. We keep calling each other for our grounding. अगर कभी कोई स्ट्रेस होता है, कोई एडवाइस भी होती है, तो हम सब एक दूसरे को कॉल करके वी आर लाइक फैमिली है. वी आर फैमिली एक्चुअली. बहुत इमोशनल मोमेंट है बिकॉज फुकरे के साथ डेब्यू हुआ था. इस जो बचपन से मन था करने का, जो बचपन से सपना था करने का, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी जो नींव है वो चूचा है, वो फुकरे है. थैंक यू मृग सर, आई लव यू. थैंक यू सो मच रितेश सर, एक्सेल, फरहान सर. थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर राइटिंग इट. थैंक यू सो मच यार एवरीवन. और आज तीसरा पार्ट आ गया भाई. 10 साल हो गए यार फुकराबंदी करते करते. क्या बात है. इस बात पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दोबारा करना चाहूंगा जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज. तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे. हमने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, काली पैंट और लाल कमीज पहनी होगी. भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे. बहुत ही अतरंगी गिफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही इनोसेंट गिफ्ट है. एंड जैसे पहले भाग में सपने थे, दूसरे भाग में देजा चू था, इस बारी बहुत अतरंगी कुछ होने वाला है. लेकिन अगर आप देखो, चूचे को गिफ्ट मिला है सेंटा क्लॉज की तरफ से, तो चूचे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना. उसको भी 28 तारीख को खोलने दो ना अपना गिफ्ट. चूचा की पर्सनालिटी का ट्रेट जो मेरी असल जिंदगी की पर्सनालिटी का ट्रेट बना है वरुण. आई थिंक मैं काफ़ी मतलब हर इंसान जैसे सोचता है, काफ़ी चीज़ें प्लान करता है, ये होता है. आई थिंक एक चीज़ जो मैंने चूचा से सीखी है वो है हर सिचुएशन में खुश रहना. Right. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ों में खुश रहना. जो कि चूचा हर कोई भी स्थिति हो वो खुश रहता है, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करी है. प्रॉब्लम है उसमें भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसमें भी खुशी ढूंढो, और उसके बाद जश्न मनाने में तो खुशी है ही है. ये अच्छा था. लाली के लिए बजाओ ताली. Thank थैंक यू you. सो मच यार. थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारी फिल्म को और इतना सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच. I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it.
So it only makes sense, but you have to deliver. And there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. 100% आती है भाई. आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था. जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था. मृक्स और मैं, हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे. प्रोसेस सेम ही है अभी भी, बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं. एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक विच कलेक्टिवली मृक्स और हम बैठ के, कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना. बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे. तो वही चीज़ को वापस सेकंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना. तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस and the kind of temperatures that we actually shot in. We have shot for ranging from like -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक इंसान, सब के सब, दैट एरिया वे वी क्लाइम्ड डाउन ऑलमोस्ट 2000 feet टू शूट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, वहाँ पे सब एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. वी आर all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है, so many folds of it. I feel it just, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. बहुत लोगों को, आपको भी, हाँ, माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए, तो बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ मैं. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, and you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what we'll make out of your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है. पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में. वी फील वेरी सेफ दैट ही इज़ अवर दरबान,
एंड आई थिंक एनीबडी हु वर्क्स विद हिम फील्स वेरी वेरी सेफ कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है. एंड थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर दैट. It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट 1 में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट. मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर एक अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है, या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है. हम सब के मिलियो, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है. तो पहली बात तो वो. दूसरी बात, जब उन्होंने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता. हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें. तो मैं तो खुद ही भूल गई, चूचे तो ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में. पानी, मम्मी को पानी पीना था यार. चल ठीक है, कोई बात. तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत, एक क्लीन कॉमेडी. हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म. बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है. तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो, और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी. और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज. वो लोग पसंद करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है. प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो जो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे. इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है. तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मृग सर, जो इस फिल्म में भी है. रोल के बारे में यार, आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है. लाली वही है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है. नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं, पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं, और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं. और इस बार भी नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी. मृग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है. हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी का ही जीते हैं. तो बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है. वो चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, अब मैं तो इतना सोचता ही नहीं सर. मतलब जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखने, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में 1-2 लाइनें लिख लेते हैं. तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, और फिर वो जाके हम सुना देते हैं. सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें. आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए, एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ. सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम
एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफ़ी आपस में एक दूसरे अब से। मुझे मालूम पड़ा ये 4 साल कहाँ गए। मेहनत किया 1 महीना। हाँ, तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है। 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस्ड भी होती है। जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं। तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं, तो कॉमेडी वो भी होती है। तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, दैट्स इट।